Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today we're going to talk about the 9th Apex Level NCORD meeting, which is Narco Coordination Center. So recently the 9th Apex Level NCORD meeting was held and it was chaired by our Union Home Minister, Mr. Amit Shah. Alright, so Union Home Minister and the Minister of Corporation, Shri Amit Shah, chairs 9th Apex Level meeting of NCORD in New Delhi. Union Home Minister also inaugurated the NCB's Amritsar office. Alright, and under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi in the past 11 years, we have achieved considerable success in the fight against drugs. So definitely, as you might know, that NCORD, which is Narco Coordination Center, is about drug trafficking, drug abuse, etc. Alright, and from March 31, 2026, for a period of 3 years, a collective campaign will be carried out on all fronts across the country against drugs to move rapidly towards making India drug free. Alright, so there is a campaign which is starting from 2026 March 31 this year. So this campaign is starting for 3 years and it is a collective campaign that will be carried out in all the fronts across the country against drugs. Alright, तो अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने 9th एपेक्स लेवल NCORD मीटिंग कंडक्ट करी न्यू दिल्ली में, और NCORD इज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर विच इज द होल सोल इन चार्ज फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज एंड इश्यूज रिलेटेड टू दैट. और इसकी जो लीडरशिप थी, जो चेयर किया इस मीटिंग को, वो थे जिन्होंने किया वो थे मिस्टर अमित शाह जी, द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन. और साथ ही ये इन्होंने एनसीबी का अमृतसर का ऑफिस भी लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, और उसके साथ ही उन्होंने ये चीज़ बताई कि 31 मार्च 2026 से 3 साल के लिए एक ऐसी कैंपेन शुरू की जा रही है जो करी जाएगी सभी फ्रंट्स में, पूरी कंट्री में अगेंस्ट ड्रग्स. सो ये ताकि इंडिया एक तरफ ड्रग फ्री हो सके. चलिए इस पूरी मीटिंग के बारे में, इस पूरी मीटिंग की समरी को समझ लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मीटिंग में हुई है वो भी उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट. So India is facing a growing problem of drug trafficking and drug abuse, and not only that, ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, ड्रग अब्यूज़ के साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं यूजुअली जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, डेटा सेज दैट दे आर वेरी लाइकली टू रेप अदर्स. नॉट ओनली दैट, दे आर वेरी लाइकली टू मर्डर अदर्स. In the moment of anger, they are very likely to murder others. So drug trafficking is a big problem. It's not only about people consuming drugs, it's also related to other issues. All right, a lot of times when somebody comes to their house, after taking drugs, then domestic violence is also something which can take place. So there are different problems related to that. All right, so India is facing the growing problem of drug trafficking and drug abuse, as we all know, and drug networks often operate across states and borders. तो जो drug नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टेट्स और बॉर्डर्स के अक्रॉस ऑपरेट करते हैं. मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, मेकिंग कोऑर्डिनेशन एसेंशियल. तो इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किस जगह पे लाए जा रहे हैं, कहाँ पर रखे जा रहे हैं, किस तरीके से बॉर्डर पार करवाए जा रहे हैं. To ensure better cooperation and information sharing, the government created a common coordination mechanism. तो ये सारे कोऑर्डिनेशन के वो करके, कोई इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई पकड़ेगा, कोई सोर्स लेकर के आएगा, इन सारे कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉमन कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बना दिया. ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर चेयर्ड 9th एपेक्स लेवल NCORD मीटिंग इन न्यू दिल्ली. तो ये जो NCORD है, ये जो मैकेनिज्म बनाया है, एक मैकेनिज्म NCORD, इसकी 9th एपेक्स लेवल मीटिंग थी जिसको चेयर किया होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने. ऑलराइट, सो अब NCORD के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं. NCORD स्टैंड्स फॉर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर. ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर. इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में.
अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये डायरेक्टली अंडर किसके अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और स्ट्रेंथन इन 2019 विद अ 4-tier सिस्टम, 2019 में इसको एक 4 टियर के सिस्टम में करके और भी ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन किया गया। इस 4-tier सिस्टम की हम आगे बात करने वाले हैं। सो यू नो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन ब्रिंग्स टुगेदर सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, किस किस को साथ में लाता है, ये सेंटर को, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को साथ में लेकर के ये आता है टू फाइट द ड्रग मेनास। तो ड्रग के जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए ये सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को साथ में लेकर के आता है। 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, 2019 में इसको स्ट्रेंथन किया गया 4 टियर का एक सिस्टम इस्टेब्लिश करके, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और किसके अंदर ये फॉल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट इट। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए कहीं किसी सोर्स ने आपको बताया कि शायद इस जगह पे मे बी इन दिस प्लेस ड्रग ट्रैफिकिंग इज हैपनिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्स तक कैसे पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन सही टाइम में उस जगह की पुलिस के पास, अथॉरिटीज़ के पास कैसे जाएगी, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग ये इनेबल करता है NCORD। ऑलराइट, टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज इन अ होलिस्टिक मैनर। अब ड्रग ट्रैफिकिंग को और ड्रग अब्यूज को एक होलिस्टिक मैनर में ये टैकल करता है और सपोर्ट करता है इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एक्शन, कैसे इफेक्टिव लॉ इन्फोर्स किए जा सके उस एक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। अब 4-tier स्ट्रक्चर की जिसमें हम लास्ट साइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि कब 2019 में इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया इस 4-tier स्ट्रक्चर को बना करके। तो ये 4-tier स्ट्रक्चर क्या है, चलिए ये एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है ये एपेक्स लेवल, ठीक है, नीचे से ऊपर शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं हम इस 4-tier स्ट्रक्चर को। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि आगे जाकर के when you become district magistrates of a district, then this is where the structure starts. Okay, so district level, then state level पे ये structure chief secretaries के पास जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल में ये स्ट्रक्चर स्पेशल सेक्रेटरी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाता है, और जो इसका एपेक्स लेवल है वो है यूनियन होम सेक्रेटरी। तो इस तरीके से ये 4-tier स्ट्रक्चर है जो 2019 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये और भी ज़्यादा इस NCORD को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द की इनिशिएटिव्स एंड सिग्निफिकेंस। की इनिशिएटिव्स और सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका NCORD को बनाने में कुछ तो इनिशिएटिव्स हुए होंगे, है ना, कुछ तो इन लोगों ने किया होगा कि और अच्छे से स्ट्रीमलाइन करी जा सके चीज़ें। चलिए समझते हैं क्या इनिशिएटिव्स हैं वो। फर्स्ट इज NCORD पोर्टल। तो एक प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बिटवीन एजेंसीज। तो एक NCORD पोर्टल बनाया गया, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, किसके बीच में, एजेंसीज के बीच में, ठीक है। दूसरा है मानस हेल्पलाइन, और मानस हेल्पलाइन नंबर है 1933, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है। मानस हेल्पलाइन में हेल्प करता है रिपोर्टिंग ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप भी अगर आप कहीं पे देखते हैं या आपको लगता है, आप समझते हैं कि यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या है या फिर इस जगह पे बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो यू एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली हेल्प द गवर्नमेंट थ्रू दिस मानस हेल्पलाइन। ऑलराइट, तो ये आप याद कर लीजिए। अगर आपको कभी लगता है कि ऐसी कोई समस्या है आपके आसपास, तो 1933 पे आप कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं NCORD की, ठीक है। NCORD की हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रेंथन करता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ऑलराइट, it strengthens the coordination between two agencies. फिर improves real time intelligence flow. real time intelligence flow जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे पता चले कि किस जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये उसको भी strengthen करता है। helps in curbing ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क हैं उनको ढूंढने में, उनको कर्ब करने में हेल्प करता है। प्रमोट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, तो ये गवर्नमेंट
उसकी अप्रोच को पूरी तरह से प्रमोट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन। तो हमने पूरा ही टॉपिक बड़े अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब मैं एक और बार एक क्वेश्चन आपके लिए MCQ फॉर रिविजन तो हम डिस्कस करेंगे, पर इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से साल में मैंने बहुत बार रिपीट किया है इसे, 4 टियर सिस्टम। मैंने अभी आपको 4 टियर सिस्टम समझाया, कौन से साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया था NCORD को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और इसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन। लेट्स सी हु वाज लिसनिंग अटेंटिवली। NCORD, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? A. Disaster management. B. Cyber security. C. Drug trafficking and drug abuse. D. Border infrastructure. किससे रिलेटेड है NCORD, वो भी आप मुझे बताइए। और साथ में कौन सा 4 टियर सिस्टम कौन से साल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कौन सही आंसर कर पाता है और कौन इफेक्टिवली सुन रहा था इस पूरे वीडियो को। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।